أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری تمہیدی باتیں ہیں. اس کے بعد بہت سارے نجی مسائل، انفرادی مسائل، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے مسائل، طلاق کے، خلا کے، ایلا کے، مہر کے مسائل شروع ہونے والے ہیں، اور اس کا ربط کیا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے پیچھے کی آیت سے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اس سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے اگر تمہیدی باتوں کو بیان نہیں کیا جائے، ان کے بیک گراؤنڈ کو بیان نہیں کیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو سب سے پہلی بات، ہم لوگ اپنے ہی نالج سے، اپنے ہی عقل سے، اپنی ہی سوچ سے، اپنی ہی فکر سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ملک ہے، اب اس ملک میں رہنے والا بادشاہ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا وہاں کا کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی ہو، اب اس کو وہاں رہنے والے باشندوں کے لیے، وہاں کے رہنے والے سٹیزنز کے لیے کسی بھی طرح کا قانون بنانے کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ لوگ بتائیے، ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ ظلمن بنا بھی سکتے ہیں اور انصاف کے اعتبار سے بھی بنا سکتے ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ایک چیز کھائی جا رہی ہے، کھاتے آ رہے ہیں، آج اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ہمارے اور انسانیت کے حقوق، کھانے کے جو حقوق ہے اس کے خلاف ہے. پوری دنیا بول رہی ہے کسی بھی چیز کے کھانے کی پابندی لگانا. میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، کوئی بھی ایک رول بنتا ہے تو دو وجوہات سے بنتا ہے. ایک، اس میں لوگوں کا نفع ہو، اور دوسرا اس میں کسی کا نقصان نہ ہو. مثال کے طور پر نشے کی چیزوں کو، جو ڈرگس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کھانے والے کو بھی نقصان ہے اور کھانے کے بعد دوسروں کو بھی وہ نقصان پہنچائے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ون وے ہے، سواریوں کو ادھر سے جانے کی اجازت ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اپوزٹ میں آئے گا تو یہاں ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے اور بنا سکتے ہیں. ہیلمٹ کو پابندی کے ساتھ لاگو کر دیا گیا، اب ہر ایک کو پہننا ضروری ہے. نہیں پہنے گا تو 1000 روپے 1500 روپے فائن ڈالا جا رہا ہے. یہ انصاف ہے، کیونکہ جب آپ گر جائیں گے، سر کو چوٹ نہیں لگی، جسم میں کہیں پر بھی لگ جائے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ سر پر اگر آپ کو چوٹ لگی تو آپ کی جان جا سکتی ہے. تو اس رول کے بنانے میں انصاف ہے اور بنا بھی سکتے ہیں. ایک ایسا رول جس میں نہ استعمال کرنے والوں کے لیے نقصان ہے، نہ اپوزٹ میں دیکھنے والوں کے لیے نقصان ہے، اس کو رول نہیں کہتے، اس کو ظلم کہتے ہیں. ایک چیز مسلمان کھاتے ہیں، اب اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ ان کو خدا مانتے ہیں تو وہ ان کی سوچ ہے. آپ جس کو خدا مان رہے ہیں، ہم اس کو کھانے کی چیز مان رہے ہیں. ہم ایک خنزیر کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو، اللہ نے تو اس کو خنزیر کے بارے میں کہا نجس ہے. اس کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں، کسی بھی چیز کو، نہ ناخن کو، نہ بال کو، نہ اس کے کھال کو، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی جائز نہیں. اور باقی حرام چیزیں ہیں، شیر ہے، کتا وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کی کھالوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر کی نہیں. اب بعض لوگ خنزیر کو پیسہ مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم تو اس کے لیے کوئی برا نہیں کہتے. آپ کی نگاہ میں ایک ہے، ہماری نگاہ میں ایک ہے. تو رول بنانے کا حق پوری حکومت کو ہوتا ہے. اگر یہ دونوں مقاصد نہ ہو
किसी का नफा भी नहीं है, किसी का नुकसान भी नहीं है, फिर भी उसको रूल बनाया जा रहा, तो ये जुल्मन है। तो ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक चीज आला असलिहा, मिसाल के तौर पर गन बना दिया गया, उसको प्रोडक्ट कर दिया गया, इसका मकसद है, अब ये बताइए, जब इसको बनाया जाता है तो किसी को कत्ल करने के लिए बनाया गया या हिफाजत के लिए बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? हिफाजत के लिए। इसलिए जो आदमी बड़ा होता है उसके साथ सिक्योरिटी को लगा दिया जाता है और उनके हाथों में गन दे दिया जाता है, जो इन पर हमला करे उनसे इसकी हिफाजत की जाए। गन को बनाया गया है हिफाजत का आला, तलवार बना दिया गया इससे अपनी जान की हिफाजत के लिए। समझ में आ रही बात? अब अगर वही गन को कोई आदमी खुद अपने खोपड़ी पर रखकर मार रहा है तो गन बनाने वाले की गलती है या इस्तेमाल करने वाले की गलती है? किसकी गलती है? अरे इस्तेमाल करने वाली गलती है। गन थोड़ी उसकी खोपड़ी में रखकर मारने के लिए कहा गया, सुसाइड करने के लिए कहा गया, या खुद अपनी खुदकशी करने के लिए नहीं बनाया गया, वो उसकी गलती है। या कोई आदमी उसी गन को लेकर अपनी बीवी को मार देता है, अब गलती किसकी है? गन बनाने वाले की या गन को गलत इस्तेमाल करने वाले की? गन को गलत इस्तेमाल करने वाले। ऐसे ही तलवार है, चाकू है, कोई भी चीज हो, हिफाजत के लिए बनाया गया, इसीलिए लाइसेंस के साथ लोगों को लेने की इजाजत दी गई कि भाई इसका लाइसेंस रखो और अपनी हिफाजत कर लो अगर आपको कोई जानी हमला है। अब वही गन को लेकर कोई आदमी अपनी बीवी को मार दिया, अपने बेटे को मार दिया, अपने बाप को मार दिया या किसी और आदमी को मार दिया, तो उसकी गलती है, गन की गलती नहीं। नहीं, गलत इस्तेमाल करे तो वो कामिश नहीं करना, गलती से वो लग गया तो वो असर नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। बास जहरों को बनाया जाता हिफाजत के लिए, चूहों को मारने के लिए, सांप को मारने के लिए, जहरीली चीजों को मारने के लिए। अब ये बनाया गया है अपनी हिफाजत के लिए। अब कोई आदमी उसको खाकर अपनी जान गंवा रहा है तो गलती किसकी है? खाने वाली की गलती है, गलत इस्तेमाल करने वाली गलती। तो इन बातों को जहन में रखकर अब इसके बाद अगले पीर, उसके बाद वाले पीर आने वाले मसाइल समझ में आएंगे। इन दो बातों को अपने जहन में सेव करके रख लेना, महफूज करके रख लेना, उसके बाद बातें समझ में आएगी। अब देखिए, गुज़िश्ता दर्स में आप लोगों के सामने बातें आ गई थी। यहां इतना वाज़ेह तौर पर इंसान की मियां बीवी के अहवाल को, उसके खास मनाजिर को अल्लाह ने खुले तौर पर बयान किया। यह बताना मकसद है कि मुसलमान का कोई भी अमल दीन से हटकर नहीं है, चाहे वो मियां बीवी से मिलने का वक्त ही ना हो, क्यों ना हो, और वो अमल ही क्यों ना हो, वो भी दीन से हटकर नहीं है। और उसको भी, उसमें भी कुछ मसाइल है, अल्लाह की मंशा है, नबी का तरीका है, उनको इख्तियार करने से उसमें भी अल्लाह अजर और सवाब रखा है। इसकी बात तफसील के साथ गुज़िश्ता दर्स में आ गई है। आखिर में बात आई थी वत्तकुल्लाह, देखो ये अमल भी अल्लाह को डरते हुए करो, अपनी ख्वाहिश को पूरा। देखो अल्लाह ने एक तो अपने इंसानों के अंदर जज्बात को रखा, ख्वाहिशात को रखा, सेक्सुअल फीलिंग्स को रखा। जब बच्चा बालिग हो जाता है, उसके अंदर, लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर अलग से जज्बात पैदा होते हैं, उसके अंदर एक तरह के फीलिंग्स पैदा होते हैं। इसीलिए जब उम्र को लड़की पहुंच जाती है, उम्र को लड़का पहुंच जाता है, तो उनका ठिकाना लगा दो, उनका निकाह कर दो। हमारे पास मेयार कमाना है निकाह, हमारे पास मेयार है लड़का अपने पैरों पर खड़े हो जाए। शादी होने तक शायद अपने पैरों पर नहीं खड़ता, बाप के पैरों पर खड़ा है, हम लोग ये समझे हैं। लेकिन शादी का मेयार ये नहीं है। शादी का मेयार बसा औकात निकाह सुन्नत होता है, बसा औकात निकाह वाजिब होता है, बसा औकात निकाह फर्ज हो जाता है, बसा औकात निकाह हराम हो जाता है। ये बातें मालूम नहीं उम्मत को। सुन्नत कब है? बच्चा बालिग हो गया, अब उसके लिए एक रफीक हयात, लाइफ पार्टनर की जरूरत है, उसका निकाह कर दो, ये सुन्नत है। वाजिब कब है? कि गुनाहों में मुब्तला होने के इम्कानात है, निकाह नहीं करे तो अब उसको निकाह करना वाजिब है। अब इंद तौकान बोलते हैं अरबी में, कि अब अगर नहीं करेंगे तो अब ये बिल्कुल गुनाहों के करीब तक चला गया, जिना के करीब तक चला गया,
दूसरों की इज्जत लूटने के करीब तक चला गया, अब फर्ज है करना माँ बाप पर जरूरी है। ये तीन चीज, सुन्नत, वाजिब, फर्ज। हराम कब है? निकाह करने के बाद मियां बीवी को ठीक से नहीं रख सकता, उसका खर्चा नहीं दे सकता, उसको घर का इंतजाम नहीं करा सकता, उसके कपड़ों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो अब उसके लिए निकाह करना हराम है। जितने निकाह टूट रहे हैं, जितने खुला हो रहे हैं, जितने नाचाकियां हो रही हैं, ये निकाह से पहले निकाह के हुकूक को ना जानने की वजह से। अरे भाई, ये छोटा सा काम, कोई भी काम ले लीजिए, साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, आधार कार्ड बनाना, कोई भी काम ले लो, वो करने से पहले उसके हुकूक, तरीका हम सीख लेते हैं। फोन पे अब आम हो गया, पढ़ने आंधे नहीं आंधे इस्तेमाल कर लेता। जब शुरू शुरू में आया तो मालूम करके इस्तेमाल करे नहीं करे। आज भी कोई आदमी नए से इस्तेमाल कर रहा तो पूछ पूछ के इस्तेमाल करता, बाद में उसे आम हो जाता। तो एक फोन में एक ऐप इस्तेमाल करने से पहले मालूम करने को हमने जरूरी समझा। निकाह एक ऐसी चीज जो मौत तक काम आने वाली है, उस निकाह को निकाह से पहले उसके हुकूक को सीखने को जरूरी नहीं समझा। मियां के बीवी पर क्या हुकूक है और बीवी के मियां पर क्या हुकूक है, शादी के बाद सास ससुर के क्या हुकूक है और शादी के बाद माँ बाप के क्या हुकूक है, इन तमाम चीजों के हुकूक को मालूम कर लेंगे तो अब ये इज़्दिवाजी जिंदगी जन्नत का घर नजर, इनका घर जन्नत का घर बनेगा। अगर नहीं तो निकाह होते ही यहां माँ बाप परेशान, वहां सास ससुर परेशान। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इनको हम समझे। ये ना जानने की वजह से आज सब परेशानियां हो रही हैं। निकाह को समझना है, निकाह का मकसद। तो अल्लाह ताला इंसान के अंदर एक जज्बात को रखा, उन जज्बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक रास्ते को रखा। उसी रास्ते से उन तरीकों को, उन ख्वाहिशात को पूरा किया जा सकता है। उससे हटकर जो भी तरीका है वो हराम है, वो जायज नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम सबके शर्मगाहों में अल्लाह ने सदक़े को रखा है। वफी बुज़ई अहदिकुम सदक़ा। लोग परेशान हुए, अयाती अहदुना शहवतहु फकाना लहु अजर। अल्लाह के नबी, एक आदमी अपनी शहवत को पूरी करेगा, उसके लिए अजर है, सवाब है। हाँ, अल्लाह का हुक्म होने की वजह से वही काम अगर दूसरी जगह करेगा तो वो गुनाह होगा, ऐसे ही हलाल में नेकी होगी। तो आखिर में इस काम में भी अल्लाह के नाम को, अल्लाह के डर को, अल्लाह के खौफ को बताया मैं आप लोगों को। सहाबा बीवियों के गोद में सोए हुए होते थे और अल्लाह का डर उनका इतना होता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला के बारे में किताबों में लिखा है कि बीवी के गोद में सर रखकर सोए हुए हैं, अचानक आंखों से आंसू आ गए तो बीवी परेशान। आप लोग देखे होंगे, जब आदमी सो जाता है तो आंसू इधर से निकलते हैं, सीधा नहीं निकलते। जब बैठे हैं तो आंसू ऐसा आते, सोए तो इधर से निकलते। तो बीवी महसूस किए कि रो रहे हैं। तो बीवी ने पूछा, क्या बात है, आप रो रहे हैं? तो कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग दुनिया से इतनी ज्यादा ताकतवर है, वो आग क्या ताकतवर होगी और उस अजाब को इंसान कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। उस आग को याद कर मैं रो रहा हूं। तो अब बताइए, जो सहाबी अपने बीवी के गोद में रहते हुए जहन्नम को ना भूला हो, उसके ईमान का क्या होगा, उनके ईमान का क्या दर्जा होगा। तो ये हमें ये तालीम दे रहे हैं कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करना हो तो भी अल्लाह को नहीं भूलना है। इसीलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका नाम ही हदीस जिब्राइल। उस हदीस का नाम क्या है? हदीस जिब्राइल। अल्लाह के नबी के पास आए, पूछे कि मल एहसान, एहसान किसको कहते हैं? हम एहसान किसे बोलते हैं? किसी के साथ अच्छा का सलूक करना, इसे एहसान बोलते, लेकिन हकीकत में एहसान क्या है? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यरा। तुम जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जिंदगी सिर्फ नमाज रोजा नहीं, जिंदगी 24 घंटे वाली जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह को देख सके, तो तुम इतना तो गुमान करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये जब गुमान आएगा तो बंदा मुत्तकी बनेगा। तो अब अल्लाह का नाम हमेशा याद रखना, ये तकवा है। अब तकवे के बात आने की वजह से अब अल्लाह ताला अल्लाह के नाम की अजमत को बयान कर रहे हैं। सहाबा में से बाज लोगों ने क्या किया, नेक कामों के ना करने पर कसम खाए। बाज सहाबा क्या किए,
नेक कामों के ना करने पर अल्लाह की कसम खा लिए। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा किसी काम से बाहर निकल रहे थे, घर में मेहमान आ गए तो कहा कि देखो मैं आने तक ताखिर हो सकती है, आप लोग मेरे आने में ताखिर हो जाए तो मेहमानों को खाना खिला लो। बोल कर चले गए। आने में ताखिर हुई, जितना वक्त था उससे आगे बहुत वक्त हो गया। हजरत आखिर में रात को वापस आए तो देखा कि मेहमान खाए बगैर बैठे हैं। घर वाले भी और मेहमान भी दोनों ने ये फरमाइश की कि हजरत के साथ खाएंगे खाना। लेट होकर आने के बाद भी खाना नहीं खिलाया। हजरत अबू बकर गुस्से में आ गए, मेरे वजह से मेहमान को तकलीफ में डाल दिए। तो हजरत अबू बकर ने कसम खा ली कि आज मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेहमानों को तकलीफ दी। इनका मकसद इससे अपने घर वालों को सजा देना। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो घर वालों को तकलीफ होगी, तो उनको तकलीफ देना मकसद था। लेकिन मेहमानों ने कहा जब तक आप नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। मेहमान भी मेहमान थे पहले के, अरे जा भी तू खाए तो न खाए तो भी खा, नहीं तो नको, हमें तो खा लेते, वो ऐसे नहीं थे। तो आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपने कसम को तोड़े और फिर कफारा दिए और फिर उनके साथ खाना भी खाए। तो ये नेक काम के ना करने का कसम खाना अल्लाह के नाम को लेकर, उन कसमों को तोड़ना जरूरी है। हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह तआला एक सहाबी है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर एक तोहमत लगी थी जिसका जिक्र सूरह नूर में आएगा इंशाअल्लाह। तो उसमें इनका भी हाथ था हजरत आयशा पर तोहमत लगाने में। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कसम खा ली थी कि मैं मिस्ताह को आज के बाद से नफका नहीं दूंगा। उनके खाने पानी के खर्चे के लिए हजरत पैसा दिया करते थे। जब ये बात हजरत अबू बकर को मालूम हुई कि इस गलत काम में इसका भी हाथ था, तो कसम खा ली कि आज से मैं इसको क्या नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। अल्लाह ने सूरह नूर में आयत नाजिल फरमाई कि तुम लोग ऐसे कसमें ना खाओ जो नेक काम हो, अच्छे काम हो। तो खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में ये आयत नाजिल हुई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कसम तोड़े, कफारा दिए, उसके बाद जितना पैसा देते थे उससे डबल देना शुरू कर दिया। गलती थी, वो गलती के बाद तौबा कर ली, इस्तिगफार कर लिया, अल्लाह ने उनके गुनाह को माफ कर दिया। फिर आप उनको सजा देने की क्या वजह? तो फिर माफी मांग लिए और हजरत अबू बकर एक के बजाय दुगना देना शुरू किए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, उनके दामाद बशीर बिन नौमान, उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई। दामाद और ससुर में कुछ होता रहता ना, ऐसा उनके दरमियान हो गया। तो उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद से मैं ना तुमसे बात करूंगा, ना तुम्हारे साथ भलाई में कुछ साथ दूंगा, ना बुराई में कुछ साथ दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी मामला नहीं रखूंगा। कसम खा ली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी वहां पर यही हुक्म दिया। कोई जब उनके बारे में बोलते तो कहते कि नहीं मैं कसम खा लिया, मैं उनके मामले में नहीं आता। तो भलाई का काम करना, अच्छाई का हुक्म देना, ये सब अच्छे काम है ना करने की कसम खा लिए। तो जब ये आयतें नाज़िल हुई कि अच्छे कामों के ना करने पर अल्लाह के नाम को इस्तेमाल ना करो। बात समझ में आई? भाई अल्लाह की कसम खा को बोल रहा हूं, मेरी बहन को मैं बात नहीं करता, अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नाम को बीच में लाकर उसको छोड़ रहे। बहन को बात करना अच्छी बात नहीं करना बुरा काम। तो अब ये कसम को तोड़ना जरूरी और फिर बात करना, फिर कफारा भी देना। जैसे ही उस काम को कर देंगे कसम टूट जाएगी, फिर उसका कफारा देना, 10 लोगों को खाना खिलाना, उसकी तफसील है फिर मैं बताऊंगा। ऐसे ही कोई कहा कि मैं आज के बाद से मैं छोटे भाई के घर में नहीं जाता, बात भी नहीं करता। अच्छा काम भाई से बात करना, लेकिन कसम खा लिया, तोड़ना, बात करना, उसे घर को जाना, फिर कफारा भी देना। ये ऐसे अच्छे कामों के ना करने की कसम खाना इस्लाम में जायज नहीं। बड़ा गोश्त मुझे पसंद नहीं है, नहीं खाना बुरी बात नहीं है, खाना फर्ज भी नहीं है। बात को अच्छा समझो, नहीं खाना जरूरी भी नहीं खाना फर्ज भी नहीं, खाना भी फर्ज नहीं। तो अब हमारी तबीयत नहीं चाहती नहीं खाने को हमारी तबीयत नहीं चाहती तो नको खाओ। लेकिन नहीं खाने को जरूरी समझना या खाने को जरूरी समझकर खाना, ये अच्छी चीज नहीं है। या कसम खा लिया आज के बाद से बड़े गोश्त नहीं खाऊंगा अल्लाह की कसम से, तो तोड़ना पड़ेगा। तबीयत नहीं चाहती तो छोड़ो, लेकिन ये इन कामों से बचना, वो चीज यहां बयान की गई। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, तुम लोग अल्लाह के नाम को अपने कसमों को आड़ ना बनाओ। अल्लाह का नाम बोले तो पूरे जने डर जाते, इसलिए अल्लाह का नाम देखो कसमा खाने का। अल्लाह की कसम तुम्हारे घर को आता नहीं, अल्लाह की कसम तुझे बात करता नहीं,
ऐसे कसम खाना जायज नहीं है। अंतबर्रो कि तुम बच सको, वतत्तको वतुस्लिहो कि उनके दरमियान सुलह कर सको, उनके दरमियान अच्छाई का मामला कर सको, बैनन नास लोगों के दरमियान इससे बच सको, तो ऐसे कसमें हरगिज ना खाओ। वल्लाहु समीउन अलीम, क्योंकि अल्लाह जानने सुनने वाले भी है, जानने वाले भी है। जुबान से तो तुमने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलने की क्या वजह, दिल में क्या मकसद है, इसको जानने वाले कौन है? अल्लाह है। बसाफत बोलते, दुश्मनी में आकर बोलते, लेकिन बोलने की वजह कुछ और रहती। भान को बात नहीं करता हूं बोल को कई को बोल रूं बोले तो जरा दिन के बाद प्रॉपर्टी तकसीम होने वाली है, अब भी ताल्लुक तोड़ लिए तो प्रॉपर्टी पूछतीश नहीं, इस वास्ते कसम खाता। ये अल्लाह जानने वाले हैं। तो ऐसा दिल के अंदर बुरा इरादा, दिल के अंदर कोई फसाद है, तो वो जानने वाले कौन है? अल्लाह है। हजरत अबू बकर ने एक गुनाह की वजह से कसम खा लिए थे, उसने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई, इस वास्ते हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कसम खाए थे ताकि उनके अंदर कुछ ऊंच नीच हो गई थी, कोई बुरे इरादे से बात नहीं छोड़े थे। ऐसे हजरत अबू बकर अपने मेहमानों को तकलीफ देने की वजह से कसम खाए थे। बुरा इरादा था क्या? ऐसे बुरा इरादा नहीं। अगर बुरा इरादा है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। ये अल्लाह जानने वाले हैं कि तुम्हारा क्या इरादा है। अब उसके बाद देखिए, अब कसमों की एक किस्म को बयान किया जा रहा है। कसम, ईमान, प्रॉमिस, जो हम लोग कसम खाते हैं, तो कसम के बारे में यहां से बयान किया जा रहा है। कसम के बारे में भी कुछ तफसील है, उसको भी समझना है। क्या है? कसम के 3 किस्में हैं। कितने हैं? 3 किस्म है। एक कसम है यमीन लग़्व, बेकार की कसमें, बात बात पर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आदत बन गई है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। कसम खाना है तो भी अल्लाह ही की कसम खाना है। कुरान की कसम, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, बाबा फखरुद्दीन की कसम, ख्वाजा अजमेरी की कसम, ये सब जायज नहीं। इनकी कसम खाना शिर्क के बराबर है। इनकी कसमें खाना शिर्क के बराबर। कसम खाने का मकसद ये है कि मेरी बात सही है या गलत है, ये जानने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह हाजिर और नाजिर है, हर जगह मौजूद है। क्या आप जिसकी कसम खा रहे हैं वो हाजिर और नाजिर है क्या? नहीं है। तो इसलिए कसम है, खाना है, जरूरत है, बेजरूरत भी नहीं खाना। बात बात पर अल्लाह की कसम, बात बात पर कसम, बात बात पर कसम नहीं बोलना। तो इसीलिए कसम खाना है तो अल्लाह की कसम, वरना कसम नहीं, जरूरत है तो खाना। तो इस तरीके से क्या हुआ, कसम की 3 किस्में। तो कसम यमीन लग़्व बोलते हैं, यानी बेकार की कसम, बात बात में कसम खाते रहते हैं, ये बेकार की कसम। दूसरी चीज है, इसकी दूसरी किस्म है कि एक तो कसम है कि बेकार की बातों में आदत सी बन गई, और माजी में एक चीज गुजरी, पास्ट में एक काम हो गया, आपने उसको समझा सही है, लेकिन हकीकत में वो झूठ है। मिसाल के तौर पर, अब कोई घर में बैठे हुए हैं, चप्पल को देखकर मैं बाहर से कहा कि अब्बा आ गए हैं, अल्लाह की कसम अब्बा आ गए हैं। माजी में होगा, पास्ट हो गया ना, अब्बा आ गए हैं, चप्पल को देखकर मैंने कहा कि अब्बा आ गए हैं, लेकिन हकीकत में जाकर देखे तो अब्बा घर में नहीं है। तो ये बेकार है, इस पर भी कोई मुआखजा नहीं होगा। बात बात पर चुपके चुपके कसम खा लेना, लेकिन अच्छी चीज नहीं है, छोड़ना, ये काम नहीं करना। और माजी के किसी चीज पर हुआ बोल को बोलना या नहीं हुआ बोल के बोलना, चप्पल नहीं सो देखो अब्बा, कसम खा को बोलता अब्बा नहीं आए बोले, हालांकि अब्बा आ गए हैं। कसम खा को बोले अब्बा आ गए हैं, हालांकि अब्बा नहीं आए। तो मेरे दिल में वो बात हुई बोल को है, लेकिन हकीकत में नहीं हुई। मेरे दिल में वो बात नहीं हुई बोल को है, लेकिन हकीकत में हो गई। तो इसको बोलते हैं यमीन लग़्व, बेकार की कसम। इस पर कोई मुआखजा नहीं, इस पर कोई कफारा नहीं, इस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन इन चीजों को छोड़ना जरूरी है। बेकार की कसमें खाना या जो हकीकत पूरे तौर पर मालूम नहीं, ऐसी चीजों की कसम नहीं खाना। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज यमीन मुनाकिदा, या फिर दूसरी किस्म यमीन गुमूस। ये जो कसम है, पास्ट में एक काम नहीं हुआ बोल को मालूम, एक काम नहीं हुआ बोल को मालूम, मुझे पक्का मालूम ये अब्बा नहीं आए हैं बोल को, फिर भी मैं जानबूझकर बोल रहा हूं अल्लाह की कसम अब्बा आ गए। मैं छोटी छोटी मिसाल दे रहा हूं, आप लोग बड़ी मिसालें आप फिट कर लेना। तो कसम खा के बोल रहा, हालांकि मालूम इसे झूठ बोल के, फिर भी कसम खा रहा, तो इसे क्या बोलते हैं? यमीन गुमूस बोलते हैं। ये झूठी कसम है, इस पर कफारा तो नहीं है, लेकिन कसम खाने वाला बड़ा गुनहगार होगा।
तौबा इस्तिग़फ़ार जिंदगी भर करते रहना पड़ता। ए अल्लाह मैंने झूठी कसम खा ली, माफ कर ले। कसम खाने का मतलब अल्लाह के नाम की बेहुरमती करना, अल्लाह के नाम की बेइज्जती करना। कसम खाने का मतलब क्या? अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करके झूठ बोल रहा है। इसीलिए अल्लाह के नाम की बेइज्जती की वजह से, बेहुरमती की वजह से, बेइज्जती की वजह से तौबा इस्तिग़फ़ार जिंदगी भर लाजिम होगा। तौबा मांगते रहना, अल्लाह माफ करे तो माफ करते, नहीं तो सजा देते। दो कस्में मालूम हो गई, इन दो में भी कफ्फारा नहीं है। तीसरी चीज यमीन मुनाकिदा। तो तीसरी चीज क्या है? यमीन मुनाकिदा। ये कसम है किसी गुनाह के काम को करने या किसी नेक काम के ना करने की कसम खाना फ्यूचर में। बात समझ में आ रही? शराब पीता हूं बोल को कसम खाता है, या फिर नमाज नहीं पढ़ता हूं बोल को कसम खाता है, या नेक किसी भी काम को, मैं वहां नहीं जाता, मैं ये नहीं खाता, तो क्या ये फ्यूचर से मुताल्लिक है। तो अब इन चीजों में, अब जब कोई गुनाह कर लिया, अब यहां इन चीजों में खा लेने से हलाल चीजों के बारे में कसम खाया तो तोड़ना जरूरी, कफ्फारा लाजिम। कफ्फारा बोले तो उसकी पेनाल्टी देना। क्या देना? कफ्फारा, उसे पेनाल्टी बोलते, तो उसे देना जरूरी, नहीं दिया तो फिर गुनहगार होता। ये कसम है फ्यूचर में। कौन कहां पर है? फ्यूचर में देने वाली कसम कि करतूं या नहीं करतूं, किसी भी काम के करने या ना करने की कसम खाना। मिसाल के तौर पर कहा कि मैं उनके घर को कभी भी नहीं जाता, या फिर मैं उनके घर का खाना नहीं खाता। अब ये अच्छी चीज नहीं है, अब ये कसम को तोड़ना जरूरी है। तो अब ये आदमी खाना, उनके घर से आने के बाद खाना खा लेना और उनसे बात भी कर लेना, कसम टूट गई, अब कफ्फारा देना। या गुनाह करने की कसम खाया तो वो गुनाह से बचना, ये कसम को तोड़ना है, तो कफ्फारा देना लाजिम हो जाता। तीन किस्में समझ में आ गई। एक है लग़्व, बेकार की कसमें खाना, पास में हुआ बोल को खा लिया लेकिन हकीकत में नहीं था, नहीं हुआ बोल को खा लिया, इसे मालूम था कि नहीं हुआ लेकिन हुआ था, इस पर भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन यमीन गुमूस, मालूम होने के बावजूद कसम खाता है, झूठी कसम, गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, हराम है, तौबा इस्तिग़फ़ार जिंदगी भर करना पड़ता। तो इसीलिए कभी भी झूठी कसम नहीं खाना, झूठी गवाही देना, कोर्टों में जाकर, पंचायत में जाकर, इसे जाकर कहीं झूठी कसम देना, वहां पर भी यही गुनाह है। और तीसरी किस्म है यमीन मुनाकिदा, किसी भी चीज के करने या ना करने की कसम खाना। अगर वो कसम टूट गई तो यहां पर कफ्फारा देना जरूरी हो जाता। ये कसम के किस्में हैं, ये क्यों आए हैं आगे बात आएगी। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा, यानी तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा बेकार की कस्मों में। तो यमीन लग़्व और यमीन गुमूस, इन दो में पकड़ नहीं करेगा, लेकिन गुमूस में गुनाह जरूर होगा। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों ने जिनको कमाया उसमें अल्लाह पकड़ करेगा। दिल ने कमाया, दिल के जरिए से मालूम है झूठ बोल को फिर भी कसम खा रहा, मालूम है सच बोल को फिर भी झूठी कसम खा रहा, ऐसे कसमों को अल्लाह क्या करेगा? पकड़ करेगा, सजा देगा, मुआखजा करेगा। उसके बाद वल्लाहु गफूरुन हलीम, लेकिन अल्लाह ताला बख्शने वाले भी है, हिल्म वाले, बर्दाश्त करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, अल्लाह ताला इससे पहले इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह जबरदस्त गलबे वाले भी है और अल्लाह ताला हिकमत वाले भी है। इसकी तफसील में बताया गुज़िश्ता उससे पहले वाले दर्स में। अल्लाह यहाँ क्या लाए हैं? गफूरुन हलीम, बख्शने वाले भी है। जब बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह मेरे से गलती हो गई, कफ्फारा दे देता है, गलती हो गई, अल्लाह बख्श देंगे, माफ कर देंगे। हलीम, बर्दाश्त करने वाले, मेरे बेटे पर मेरा पूरा चलता, अब उसे मैं मार सकता हूं, अब मैं उसे डांट सकता हूं, उसे क्या भी हमले कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद बर्दाश्त करने की जो सिफत हर एक के अंदर नहीं आती। गुस्सा आ गया तो बेटे को मारना बड़ी बात है, गुस्सा आने पर गुस्से को काबू करना बड़ी बात है। बताओ क्या बात बड़ी बात है? काबू करना बड़ी बात, क्योंकि मेरा पूरा चलने के बावजूद भी माफ कर छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला बोलते तुम्हारे ऐसे बेकार के कस्में, झूठे कस्में खाने की वजह से गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन फिर भी मैं हलीम हूं, मैं बर्दाश्त करने वाला हूं, मैं तुमको माफ करूंगा। अल्लाह अगर हमारे गुनाहों की सजा
فوری طور پر اپنے غصے کے حساب سے دے دے گا، دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا. لیکن اللہ حلیم ہے، برداشت کرنے والے ہیں، اللہ بخش رہے ہیں. اگر ہمارے گناہوں کی سزا فوری طور پر مل جائے تو کوئی بھی اگلے درس میں نہیں رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، اللہ بخشنے والے ہیں. اس صفت ایسے الفاظ سے اللہ کو دعا کرنا ہے. دعا کرنے کا طریقہ ہم سیکھنا ہے. اللہ آپ غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، جان جان کر گناہوں کو بخشنے والے ہیں. نہیں جان کو اللہ انجانے میں چکے ہیں کیا؟ ہمارے امی ابا ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو جانے بغیر. آپ سب لوگ مجھے محبت کرتے ہیں میرے غلطیوں کو، گناہوں کو نہ جاننے کی وجہ سے. اگر میرے غلطیاں، میرے گناہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے، محبت کریں گے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، ہر گنہگار بندے کا گناہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو متقی کے ساتھ جو اللہ کا رویہ ہے وہی رویہ گنہگار کے ساتھ بھی ہے. میری زمین سے، میرے آسمان سے، میرے پانی سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ اللہ رحمان ہے. رحیم کا برتاؤ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اللہ دنیا میں بتاتے ہیں رحمان کی صفت، رحیم کی صفت آخرت میں بتائیں گے. تو اسی لیے رحمان کی صفت ہونے کی وجہ سے میں بھی بچا ہوا ہوں اور آپ بھی بچے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ، یہ ایسے الفاظ سے اللہ کے دعائیں کرنا ہے. جیسے ابو کو معلوم، بیٹے کو معلوم، بیٹی کو معلوم، کیا بولے تو ابو میری بات سن لیتے. ان الفاظ سے ابو کو مناتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بات کرنا سیکھے ہیں، 3-4 سال بات کرنے. ابو آپ میرے بہت پیارے ابو ہیں، آپ کے جیسے کوئی ابو نہیں ہے دنیا میں. باپ خوش ہو رہا ہے، کیا ہونا بولے بیٹے، اللہ کو دے ڈالتا. ارے بیٹا میری تعریف کر دیا، بیٹی میری تعریف کر دی، خوش ہو جاتا. تو ابو کو خوش کرنا چھوٹا بیٹا سیکھ لیا. ہماری عمر 40-50 سال ہو گئے، پیدا کرنے والے خالق کو خوش کرنا نہیں سیکھے. ارے دعاؤں سے خوش کرنا، الفاظ سے خوش کرنا. ہم لوگ لوگوں کو خوش کرتے. ارے کاروبار کو آئے، کسی کو خوش کرنا ہے تو کر دیتے. جا کے ہم لوگ فاسق فاجر سٹیجوں پر کھڑے ہو کر ان کی تعریف کرنا ہم نے سیکھ لیا. ایسے بیکار کے پروگراموں میں جا کر فاسق فاجر کی جب تعریف کی جاتی تو عرش ہلنے لگتا ہے. ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، عرش کو پیدا کرنے والے خالق کی تعریف کرنا نہیں آتا. یہ ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والی بھی ہے، حلیم برداشت کرنے والے بھی. اللہ کے اندر یہ برداشت کرنے کی صفت ہے، تبھی تو پوری دنیا چل رہی ہے. اب یہاں ایک خاص مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے ایلا ایک مسئلہ گزشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت آنے سے پہلے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے عورت کو ایک ٹیشو پیپر سمجھا جاتا تھا. آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان عورت کو ایسا کر رہے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام آنے کے بعد عورت کو کیا عزت ملی، اسلام آنے کے بعد عورت کا کیا مقام و مرتبہ بڑھا. یہ ابھی آپ لوگوں کو بات معلوم ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت گھر کی زینت ہے. اسلام کیا کہتا؟ عورت گھر کی زینت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کی زینت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا کام اپنے بچوں کو سنوارنا، تربیت کرنا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی زینت ہے اور اپنے گھر کو سنوارنے کا کام اس کا ہے. دنیا کہتی ہے کہ عورت باہر کی زینت ہے. فرق ہے نہیں ہے. ارے عورت باہر کی زینت ہے، اس کو باہر بھیجو. تم نے برقع پہنا کر اس کو بند کر دیا، گھر کے اندر رکھ دیا. ارے باہر کے دھوپ کو برداشت کرنا، صحبتوں کو برداشت کرنا، بس میں غیروں کے دھکے کھانا، آفسوں میں غیروں کی باتیں سننا، باہر زانیوں کی نگاہیں پڑنا، اس سے عورت کی حفاظت ہو رہی یا اپنے گھر میں مہارانی بن کے رہنے میں اس کی عزت ہے؟ بتائیے کس میں عزت ہے؟ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اپنے شوہر کی زینت بننے میں، اپنے گھر کو سنوارنے میں اس کی عزت ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان بھی اس کو الٹا کر دیے کہ نہیں، عورت مرد کے برابر چلے گی تو اس کی عزت، نہیں تو نہیں. اسی لیے آج مسلمانوں کا 90% مجمع، مسلمانوں کا، غیروں کا تو چھوڑو، مسلمانوں کا اپنے بچیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں پڑھانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ مرد درمیان میں ہاتھ چھوڑ دے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. عورت کے اندر یہ جذبہ بنایا جا رہا ہے کہ تم شادی کے بعد شوہر کی غلام بن کر نہیں رہنا. یہ ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا. پڑھانے کی وجہ یہی ہے. یہی سے نکاح کی بنیاد ڈیمیج ہو گئی. نکاح کی بنیاد ڈیمیج ہو گئی. یہاں عورت اب کیا بن کر جاتی معلوم؟
एक प्रेसिडेंट बन के जाती है, बीवी बन के नहीं आती। बीवी वो है जो शोहर की फरमाबरदार बने। भाई आप लोगों को मैं बता दूं, दुनिया में सब लोग एक ही लेवल के रहेंगे तो निजाम चल पाएगा? मैं भी पीएम, आप भी पीएम, 100 पीएम है तो दुनिया का निजाम चलेगा? मैं भी पुलिस, आप भी पुलिस, सब पुलिस, निजाम चलेगा? किसी का मर्तबा बड़ा, किसी का मर्तबा नीचा रखिए तो उसका जिंदगी बनती। सो सबके मर्तबे बराबर है, औरत को कहीं कम देखते तुम्हें, औरत को भी मर्द का मकाम दो। तो इसीलिए निकाह टूट रहे हैं, इसीलिए घर बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए खुला हो रहे हैं, इसीलिए तलाक हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे पीएम को पीएम मानने से दुनिया चलेगी, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मानने से दुनिया चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ ऑफ जस्टिस मानेंगे तो निजाम सही चलेगा, वरना हम सब हमें भी बराबर, कहीं को उसे किस बड़ा मानना बोले तो चल सकता। तो इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद अच्छी रहना बोले तो औरत शोहर की मुती फरमाबरदार बनकर रहेगी, इज़्दिवाजी जिंदगी सुनहरी रहेगी। दोनों बराबर हो गए तो समझो वो इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं है, वो लिविंग टुगेदर है, जो आज का कल्चर है। मिलकर जिंदगी गुजारो, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करो, बस। ये अब बताइए, इस्लाम औरत को इज्जत दे रहा है या बेइज्जती कर रहा है? अरे इज्जत दे रहा है। चलो दूसरा इश्काल, अरे इस्लाम 4 निकाह की दावत दिया है। अरे अल्लाह के बंदे, 4 निकाह की इजाजत उस वक्त दिया है जब चारों के साथ बराबरी का बर्ताव करे। एक बीवी के साथ भी बराबरी का बर्ताव नहीं करेगा तो एक निकाह भी जायज नहीं है। ये कोई बोलता क्या? सिर्फ 4 निकाह है बोल के इस्लाम को बदनाम करना मालूम, लेकिन 4 निकाह किसके लिए जायज है? जो चारों के हुकूक पूरे तौर पर अदा करे। जो एक की भी हुकूक पूरा अदा नहीं करेगा उसको एक की भी जायज, बताया ना मैं भी, हराम है, निकाह करना हराम हो जाएगा जो एक बीवी के भी हुकूक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, या अय्युहश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। ए नौजवानों की जमात, या अय्युहश शबाब का मतलब क्या? नौजवानों की जमात, तुम में जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे। फमन लम यस्तती, और जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या करना? फ़अलैहि बिस्सौम, वो लगातार रोजे रखे, लगातार, छोड़ छोड़ को नहीं, 30 रोजे नहीं, रमजान के 60, 70, 80, जब तक तेरे अंदर निकाह की ताकत नहीं आती या फिर गुनाहों के तरफ मुब्तला होने के इम्कान है, रखते जा। क्यों? ये तुम्हारी अंदर की ख्वाहिशात को रोजा तोड़ेगा। क्योंकि तुम रोजे रखकर दुबले हो जाओ, तुम रोजे रखकर कमजोर हो जाओ, लेकिन ताकत ना होने के बावजूद भी निकाह कर कर किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद ना करो। ये इस्लाम है, ये औरतों की हिफाजत है, ये लड़कियों की हिफाजत है। इसको छोड़कर दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भाई देखो औरतों को बदनाम किया जा रहा है, औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है। नहीं, इस्लाम औरतों की इज्जत करता है। जितने इस्लाम ने औरतों की इज्जत की है, दुनिया का कोई मजहब नहीं किया। अब यहां अल्लाह ताला नौजवानों को बोले हैं, अल्लाह के नबी, ऐ नौजवानों, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करो, है कि नहीं? क्योंकि कपड़ा उसके जिम्मे, घर उसके जिम्मे, उसके जरूरत उसके जिम्मे। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया कि आज तक आप लोग किसी भी मस्जिद में या किसी भी पब्लिक में कहीं पर भी सुना कि मेरे बेटे का निकाह है, चंदा दो? कहां पर भी सुने? नहीं सुने। बेटी का निकाह है, पैसे दो, ये बात तो सुनने में आता, लेकिन बेटे का निकाह है बोलते अल्लाह के नबी क्या बोले? ऐ नौजवान लड़कियां, जुम्मे जिसके पास निकाह करने की ताकत है वो निकाह करे, नहीं बोले। तुम्हारे पास बीवी के लिए घर का, बेड का, चीजों का इस्तेमाल करने की ताकत है तो निकाह करो, नहीं तो नको करो। तो मामला उल्टा हो गया, पूरा बोझ लड़कियों पर डाल दिया गया। इसलिए लड़कियों का निकाह आज महंगा हो गया। जब निकाह महंगा हो गया तो जिना सस्ता हो गया। आज जिना सस्ता है, औरतें भाग जाना, लड़कियां भाग जाना, शादीशुदा भी भाग जाना, गैर शादीशुदा भाग जाना, नौजवान भाग, क्यों? निकाह महंगा हो गया। तो बहरहाल ये तमाम चीजें यहां पर बयान। तो औरत, अच्छा 4 निकाह की इजाजत दिया, बराबरी का मामला है तो, नहीं तो नहीं। बराबरी का मामला एक के साथ भी नहीं करेगा तो एक निकाह की भी इजाजत नहीं है। इस पर यह बात आई। अब यहां देखिए, हम ये कहते हैं कि एक बेवा औरत या फिर जिसका अभी तक निकाह नहीं हुआ, उम्र ज्यादा हो गई, तो जिसके पास जवानी भी है, ताकत भी है, माल भी है,
तो हम इस मर्द को ये कहते हैं कि आप एक औरत को इज्जत वाली जिंदगी दो। किसकी जिंदगी? इज्जत वाली जिंदगी। अगर वही औरत जिना के अड्डे को गर्म करेगी तो वो 4 लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी, लेकिन जब वही किसी शोहर की बीवी दूसरी बीवी बनकर रहेगी जो पूरे हुकूक पूरा करने वाला है, इज्जत के साथ पूरे दुनिया के सामने वो कह सकती है कि ये मेरा शोहर है, मैं इसकी बीवी। अब बताइए, इस्लाम इज्जत दे रहा, बेइज्जती दे रहा? तो ये चीजें कुछ नोट करने के होते हैं, इनको नोट कर लेंगे तो इस्लाम में कोई चीज नुक्स नहीं है। हमारी समझ, हमारे अंदर नॉलेज ना होने की वजह से दूसरों की बातों से हम मुतासिर हो जाते हैं। तो औरत को इज्जत वाली जिंदगी देने का मकसद इस्लाम का है। गुज़िश्ता मसाइल आए, खास अय्याम में औरत के साथ वो काम नहीं करना। इतना दुनिया में डॉक्टर बोल सकता है ये काम, दुनिया में कोई तजुर्बा रखने वाला बोल सकता है ये काम, लेकिन मजहब इस बात की इत्तला देता हो, इस बात की तालीम देता हो, इस्लाम के अलावा कोई है नहीं है। तो ये औरत की खैर खाही है, बदखाही है? खैर खाही है। अब फिर औरत का नान व नफा, उसका खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, रहने का खर्चा पूरा किसके जिम्मे है? औरत के जिम्मे है, मर्द के जिम्मे है। तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर तफसील के साथ बयान किया गया है। बहरहाल अब देखिए, इसके बाद जो मसाइल आने वाले हैं वो ईला है। मैं कुछ आप लोगों को हिंट्स बता देता हूं, इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले दर्स में किया जाएगा, वक्त हो गया है। ईला कहते हैं, ईला के 2 किस्में हैं। ईला का मतलब है कोई शोहर अपनी बीवी से मैं तेरे करीब नहीं आता बोल के कसम खा लेना। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक मर्तबा अपने तमाम अज़वाज से ईला कर लिए थे। क्यों किए थे? बसा औक़ात ईला करना, करीब ना जाने की कसम खाने को ईला कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए, अज़वाज मुतहहरात, अल्लाह के नबी की जो बीवियां थी, एक मर्तबा सैलरी, क्या बोलते हैं, माहाना खर्चा, हर मर्द अपनी औरत को माहाना खर्च देना है। हमारा जुमला क्या? तुमने क्या मैं कम करे, तुमने क्या होना, पैसे लेको क्या करते हैं? उनके भी कुछ ख्वाहिशात होती, उनके भी कुछ काम वगैरह होते, पर्सनल काम रहते, तो इसलिए कुछ भी अपने इनकम के हिसाब से अपने बीवियों को पैसा देना, इसको वो नफका कहते हैं। अल्लाह के नबी जब गनीमत का कोई माल आ जाता था, जब कोई सोना चांदी कुछ पैसे आ जाते थे, तो अल्लाह के नबी एक साल का नफा दे देते थे। कितने साल का? 1 साल का नफा एक साथ देते थे, क्योंकि बार बार देना परेशान रहता नहीं रहता, मालूम एक साथ दे देते थे। तो बास बीवियों ने अल्लाह के नबी से और ज्यादा पैसे मांगे। अल्लाह के नबी, ये पैसे हम ना बस होते नहीं है, जरा सैलरी बढ़ाओ बोले। अल्लाह के नबी को ये बात पसंद नहीं आई। मेरी बीवियों की सोच फिक्र माल और दुनिया की तरफ जारी बोल के सजा के तौर पर 1 महीना इला कर लिए कि मैं अपनी बीवियों के पास नहीं जाता। एक बड़ा वाकया है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बात पहुंची, हजरत अबू बकर को पहुंची। सबसे ज्यादा डर खौफ इन दोनों को हुआ, क्योंकि इनकी दोनों बेटियां कहाँ हैं? निकाह में है ना अल्लाह के नबी के। बात यह फैल गई थी कि अल्लाह के नबी ने सब बीवियों को तलाक दे डाले। बात क्या फैल गई? सब बीवियों क्या कर दिए हैं? तलाक दे डाले हैं। तो ये बात फैल गई। तो फैलने के वजह हजरत अबू बकर, हजरत उमर बहुत परेशान हो गए। आए वो लोग, तो वो एक वाकया है, फिर चाहे तो अगले फिर को बताऊंगा। तो ऐसा अपनी बीवी से दूर रहने की कसम खाकर दूर रहना, तो इस पर क्या मसाइल मुरत्तब होते हैं, इसके बाद मर्द क्या करना पड़ता है, औरत को क्या करना पड़ता है, और ये क्यों इस तरीके से किया गया, इस्लाम ने इस हुक्म को क्यों रखा गया, ये तमाम बातें इंशाल्लाह अगले दर्स में आएंगी। ये बातें समझने के लिए आज के दर्स में जो शुरू में 2 बातें बताया हूं, उन बातों को याद रखना पड़ेगा। मैं ये आज ही ये पूरी बातें हो जाती समझकर शुरू में बता दिया था। वो 2 बातें याद रखकर अगले दर्स में आएंगे तो आगे की बातें समझ में आएंगी। अगर वो 2 बातें भूल कर आ गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।